Welcome to our brand new series, Chat and Chaटे। शुरू कर भाई। हेलो पीपल, आई एम श्योर कि तुम लोग ये सोच रहे हो कि मैंने अचानक से ये क्या वीडियो बना दी, राइट? लाइक व्हाई हैव आई पिक्ड अप ऑन वन पर्सन फ्रॉम द लॉट एंड अबाउट टू से like whatever shit I'm about to say. So don't worry, पहली बात तो this is not going to be that kind of video. And सीन क्या हो गया ना कि एनिमल का नटशेल पे वर्क करते हुए ना मैंने एक्चुअली संदीप भाई के ऑलमोस्ट सारे इंटरव्यूज़ देख डाले। लाइक जो भी एटलीस्ट मेजर बड़े थे वो सारे इंटरव्यूज़ मैंने देख डाले। एंड like it is at least like 2 to 3 days of my life I have given on this guy, I have spent on this guy, so that amount of time is huge. So ऐसी एक वीडियो बनाना तो definitely बनता है. And the thing is, this feels like a Morpheus moment for me. So as much as it may look funny, I know it will look funny, so but still a character is a character and I would like to get into the character. So अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे? yeah, I know it must be looking very funny, but character is a character. Okay, so let me stay in the character. ठीक है? Anyway, so what happened was कि while working on these, like while checking out these interviews, I noticed a pattern. Like संदीप भाई की बातों में, उनके जवाबों में, there was a very noticeable pattern. That is कि एक तो he has a problem with people quoting him and his work out of context, which I agree can be a very problematic thing. Second thing is him deflecting certain questions by giving quite off-point answers. And lastly, I figured out that he almost always justifies his way of thinking by saying कि भाई आज की तारीख में तो लोग बस offend होने के लिए बैठे हैं, which is a fact, yes, definitely, but not every criticism of your work is an unreasonable offense, right? कभी कभी किसी चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा. So I'll just try to break down a little bit of his work and his thought process behind it and see how it goes. तो सबसे पहली बात ना, लोगों को काफ़ी अच्छा खासा मिसकंसेप्शन है, I know, by looking at the comments in my nutshell वाला वीडियो. तो सबसे पहले इस चीज़ को साइड हटा देते हैं. The very first thing is that I never said that I hated Animal. It is a very good movie when you look at how it has been made, how good the direction is, the cinematography is, and how good every other technical work has been done. जितना dedication, जितना attention to detail और मेहनत लगी है, it all reflects clearly. The music is top notch, except for that last finale वाला B Prague वाला गाना. The acting is top notch. Basically, when you look at these things, you will understand why the movie did so well. Along with that, Nutshell के comment section में I saw few people saying कि भाई मुझे शायद मूवी समझ आई ही नहीं. Allow me to break that bubble as well, क्योंकि I believe मुझे मूवी समझ आ गई है to the best of my capacity. The most basic point is that कि एक बंदा है जिसके बाप को पेरेंटिंग नहीं आती, फैमिली पे ध्यान नहीं है और क्रिटिसिज्म या ब्लेम वो ले नहीं सकता. अकाउंटेबिलिटी से उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल दिस गाय रणविजय इज सो ऑब्सेस्ड विद हिज फादर, प्लस ही डेस्परेटली क्रेव्स हिज अटेंशन टू सच अ पॉइंट कि अबरार को मारने के चक्कर में ही डिस्ट्रॉयड हिज ओन लाइफ, हिज ओन फैमिली बाय डूइंग ऑल द स्टफ दैट ही डिड, जस्टिफाइंग इट इन द नेम ऑफ हिज फादर, एंड इन डूइंग दैट ही हैज बिकम दिस एनिमल टुडे, राइट? एंड इन अ सेंस दिस मूवी इज बेसिकली अ मैन्स वर्ल्ड, ऑलराइट, इफ यू रियली वांना परसीव इट लाइक दैट. तो ये कहानी बस कुछ ढीठ, लीचड़ और मॉरली करप्ट आदमियों की है जो बस दो चीज़ जानते हैं, एक वायलेंस, दूसरा टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, एंड दैट्स द डीपेस्ट आई एम विलिंग टू गो फॉर नाउ. ऑलराइट, एंड बस ये एक चीज़ या इसी के स्पेक्ट्रम में फॉर वंस अगर डायरेक्टर साहब कोई भी स्टेटमेंट दे देते तो इस मूवी का रिसेप्शन कंप्लीटली डिफरेंट होता. जो क्रिटिसाइज करके ये कह रहे हैं ना कि मूवी पसंद नहीं आई, घटिया है, मिसोजिनिस्ट है, व्हाटएवर, उनको भी पसंद आ जाती, सारी कंट्रोवर्सी खत्म हो जाती, फिर मुझे लाइक 1000 crores प्लस पक्का थी. But for me personally, the reason why I didn't like Animal is solely because of how the story itself progresses, especially and specifically how it goes after the interval. अब इसके बारे में और समझना है why I did not like the movie तो जाके ये वीडियो देख लेना. But now the major problem that people had with this movie or in general his movies is that they believe his movies are quite misogynistic. मतलब काफ़ी ज़्यादा. तो पहले ना misogyny का meaning समझते हैं. So misogyny का dictionary definition says that hatred or prejudice against women typically exhibited by men. It is generally accepted that misogyny is a consequence of patriarchy and the terms may be applied to certain individuals as well as larger systems, societies or cultures. मतलब बेसिकली साधारण शब्दों में समझाना चाहूँ तो आदमी को औरत से ऊपर समझना और औरत से सुपीरियर समझना और उसी के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंगली चीज़ें करना या दिखाना. तो अब सवाल ये है कि यहाँ पे ये क्यों आया,
क्योंकि पहली जो 2 मूवीज हैं जो सेम है बेसिकली, दैट इज अर्जुन रेड्डी एंड कबीर सिंह, इसमें लड़के का कैरेक्टर एक रिलेशनशिप के बॉक्स में अगर देखोगे ना तो बहुत ही डोमिनेटिंग है, वॉयलेंट है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, कंट्रोलिंग है और काफी हद तक बदतमीज है। सेम गोज फॉर एनिमल, उसमें भी स्पेशली जो प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट हो गए हैं वो दोनों ही बहुत डिस्गस्टिंग थे। एक का दिमाग और काम दोनों ही खराब थे और दूसरे के दिमाग और काम विद टाइम खराब हो गए, प्लस पापा जो दिखाए हैं उनका भी दिमाग खराब है, he doesn't care. Now, I know a lot of men like this exist in the world, बहुत सारे, and I understand that as a filmmaker, as an artist, you can and you should show every kind of character in your movie doing any kind of thing, be it good, bad or worse, because see, that's the best thing about cinema. You can take it to any extent as you wish because उस बड़े पर्दे पे क्या होगा, you have full control of that. You can make the most beautiful, most crazy, most horrifying or violent film and we will love it. लेकिन अगर मॉरली एक प्रोटैगनिस्ट जिसे लोग प्रेज करने लगे वो अगर गलत है तो इधर यू कैन शो सम सॉर्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस और मे बी टॉक अबाउट इट एज अ प्रॉब्लम इन द मूवी इटसेल्फ, बट इफ यू चूज नॉट टू डू दैट, you know, like because at the end of the day it totally depends on your storytelling कि तुमने क्या करना है, कैसे दिखाना है, that is completely fine as a creative liberty obviously, but the issue comes when you say that as a person in real life you do not see anything wrong with that character. मतलब एक जगह तुम लगभग हर सीन को डेप्थ से देखते हो, वहाँ ऐसी बातें करोगे तो दैट गोज अहेड एंड सेट्स इट एज योर बिलीफ इन योर ऑडियंस का माइंड कि भैया ये कैरेक्टर तो दिखा दिया और अब इंटरव्यूज में ये बंदा उस कैरेक्टर से सिंपैथाइज भी कर रहा है और उसे सपोर्ट भी कर रहा है, तो या मे बी दैट इज राइट, मे बी दैट इज हाउ इट शुड बी और मे बी दैट इज हाउ इट कैन बी। क्योंकि चलो जस्ट फॉर दी आर्ग्यूमेंट से योर मूवी डजंट हैव एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बट यू फॉर श्योर डू। अगर तुम अपने मूवीज के हर सीन में, हर डायलॉग में एक एक कैरेक्टर की स्टोरी आर्क में डेप्थ देखते हो, हर चीज में तुम गहराई ढूंढते हो और फिर उसे बड़े पर्दे पे दिखाते हो, तो यू शुड फॉर श्योर अंडरस्टैंड दी गहराई लोगों के क्रिटिसिज्म में भी, राइट। और संदीप भाई को तो मैंने ये दोनों ही मूवीज के लीड कैरेक्टर्स के बारे में इस लाइट में बात करते हुए नहीं देखा है। द क्रू ट्राइड, यस, बट या तो वेगली या फिर बाद में जाके स्टेटमेंट ही बदल दिए, लाइक हाउ रणबीर सेज कि इट हेल्प्स स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। Of course, there is a very healthy conversation that has started about toxic masculinity also, which is a great thing because cinema at least they starts a conversation. अगर कुछ गलत है, अगर आप दिखाओगे नहीं कि गलत है, and unless a conversation starts in society, we will never realize it. But then months later agrees to Nikhil Kamat's statement where he says Animal was not misogynistic. Let me tell you, like when the film was released, even though it did amazing numbers and did really well and we got a lot of love, there is a big audience which found this film misogynist and found this film wrong in some way. But I think it was misconstrued, and I think social media also played havoc. You know, they need something to talk about, so they really went to town with. See, the reason I am saying this is because या तो तुम completely अलग ही रहो पूरे conversation से and let people say whatever they are understanding from the movie. But if you think at all कि तुमने जो मैसेज डाला है, जो तुम मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो वो पूरा गलत कन्वे हो रहा है, तो you have to speak up. एक बहुत ही अच्छा और बड़ा एग्जाम्पल मैं दूंगा पेन बैजली का। इस बंदे ने करी एक सीरीज यू, दैट्स ऑन नेटफ्लिक्स। उसमें ये बंदा है एक स्टॉकर, मतलब एक मैनिपुलेट करने वाला, चोरी चकारी, कत्ल करने वाला, तुम्हारा एनवायरनमेंट इस कदर तक फैब्रिकेट करने वाला कि तुम घूम फिर के उसके चंगुल में फंसी जाओगे, ऐसे प्रकार का स्टॉकर इसने प्ले किया है। बट जब उससे इंटरव्यू में पूछा गया इसके बारे में और बताया कि भाई जो गोल्डबर्ग का जो कैरेक्टर है लोग उसे बहुत पसंद कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि दे वुड लव to have such a guy in their life also. That is exactly when he saw an opportunity and उस मौके पे तुरंत इसने बोला कि भैया ये कैरेक्टर बहुत प्रॉब्लमैटिक है, बहुत टॉक्सिक है, हमने ये बनाया है so that you can see and understand कि ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में और तुम सावधान रहो, सतर्क रहो, that's it. बट ये सेम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें इंडियन फिल्म मेकर्स में नहीं दिखती। लाइक फॉर एग्जाम्पल संदीप भाई से अगर पूछो कबीर सिंह में एक किस के बारे में, तो he says this. See, there are few girls who don't talk much. I have seen so many girls, women saying that we need somebody like Arjun Reddy or Kabir Singh in life. Have you ever felt that Preeti was threatened when he was kissing? Uncomfortable, yeah. But why didn't she slap him then? भाई लड़कियां होती होंगी, yes, definitely I agree, but here you have showed a 19-year-old girl who has just freshly come out of school और यहाँ पे जो लड़का है वो सीनियर है और आउट ऑफ कंट्रोल है क्लियरली, क्योंकि डीन का तक खौफ नहीं है उसे, तो उसे तो ये इंसान इंटिमिडेटिंग लगेगा ही, राइट। बट योर रिस्पॉन्स इज दिस ऑन टॉप ऑफ इट। वो स्लैपिंग वाले सीन में चलो आई वुड से कि ठीक है, एज लॉन्ग एज नो वन गेट्स अ रॉन्ग आइडिया आउट ऑफ इट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन, बट देन यू से दिस अबाउट दैट। And she slapped him without a reason at least.
Kabir has a reason to slap. See, this doesn't sound right because in the context of the movie, Preeti first slaps him because वो public में खड़े होकर उसे चिल्लाता है, उससे बदतमीजी से बात करता है. Later in the movie, Kabir slaps him because Preeti के बाप ने बदतमीजी से बात करके कबीर को घर से भगा दिया. But you said this. Kabir has a reason to slap. So there is definitely at least a lack of explanation here that you are trying to expect people to understand. बट चलो ठीक है, क्रिटिसिज्म की बात करें तो जावेद सर का जो कमेंट था उसमें लेट्स कीप द बूट लिकिंग सीन असाइड फॉर नाउ. लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द स्लैप अगेन, राइट. अगर किसी मूवी में कोई लौंडा किसी लड़की को थप्पड़ मारना सही बता रहा है और वो मूवी सुपर हिट हो रही है तो दैट इज डेंजरस, दैट इज व्हाट ही सेड, राइट. तो अब आप इस स्टेटमेंट से ऑफेंस मत लो ना. आप इसमें एक गहराई ढूंढो. जावेद सर का क्या कहना है वो छोड़ो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ. मूवी में थप्पड़ मारा वो ठीक है, नो प्रॉब्लम, बिकॉज दैट्स योर लीड कैरेक्टर, आप कुछ भी करते हुए दिखा दो उसको. बट जब आप इंटरव्यू में बैठे हो तो आप फिर से ये कह रहे हो. I said, like, if you don't have a liberty of showing your worst side, it could be slapping or pinching or whatever. I don't see emotion there. This is what I said, that's it. Yes, I understand कि you should have the liberty to show your worst side to your partner, definitely. But my question is, आदमी औरत किन्नर छोड़ो, be it anyone, in a relationship, why does your worst side have to be to inflict pain, like slapping or whatever you want to include in that? तुम्हें अपने पार्टनर पे हाथ क्यों उठाना है या फिजिकल दर्द ही क्यों देना है as a part of that worst side? There are a lot of things that can be worst but still better than hitting your partner. आप कोई भी साइकोलॉजिस्ट या फिर आई डोंट नो बिहेवियरल स्टडीज से रिलेटेड किसी भी प्रोफेशनल को अपने साथ बिठाओ और उनसे पूछो कि हाउ डज एन अब्यूजिव पैटर्न स्टार्ट इन एनी रिलेशनशिप. आई एम श्योर वो आपको समझाएंगे कि आपके इस लॉजिक का फ्लॉ क्या है. नाउ टॉकिंग अबाउट दैट लिक माई शू वाला सीन, चलो एज रंगन भारद्वाज सेड कि ही सीज इट एज इक्विवेलेंट टू लेट्स से जंपिंग फ्रॉम द विंडो काइंड ऑफ क्वेश्चन और काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट, बिकॉज यू नो वो उसके पूरे खानदान को खत्म करने आई है तो खिड़की से कूदना सही है, जूता चाटना सही है, तो उसे टॉर्चर करते हुए क्यों नहीं दिखा दिया मूवी में. आई मीन जो इंसान भाई सिडक्शन से मुंह खोल सकता है वो 8-10 दिन पिट के तो फिर और मुंह खोलेगा. बट दैट्स माई सजेशन विच कैन बी इग्नोर्ड ऑब्वियसली बिकॉज दैट अगेन इज योर चॉइस ऑफ स्टोरी. आई वोंट कमेंट मच ऑन दैट पर्टिकुलर सीन. ये बताओ, अगर आपका लीड कैरेक्टर इतना ही अच्छा है या मिसोजिनिस्टिक नहीं है तो इन द स्टोरी व्हाई डज ही किल हिज जीजा ओनली आफ्टर ही फाइंड्स आउट कि वो इसके बाप को मारने की कोशिश कर रहा है. तब क्यों नहीं कुछ किया जब ही फिगर्ड आउट कि इसका जीजा इसकी बहन पे हाथ उठाता है. क्योंकि इफ यू रियली वांट टू शो द डेप्थ ऑफ द कैरेक्टर तो जब रणविजय को पता चला कि यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस चल रही है तब आपने बस ये डायलॉग दे दिया. Did you see how he touched her? पर अब बोल के क्या फायदा, तो बच्चे हैं उसके. Why didn't your alpha male do something about such a possibly life threatening situation that is happening with his sister? वो बहन जिसकी रैगिंग होने पे अल्फा मेल ने कॉलेज में गोलियां चला दी, लॉन्डो को गाड़ी से ठोक दिया, जेल तक जाने को तैयार था, बट इतनी बड़ी बात जान के कुछ नहीं किया. क्यों? बिकॉज आपके लीड कैरेक्टर का गुस्सा सिलेक्टिव है, maybe, or is it because you believe in this? Sadly, it's a man's world. So क्या मर्दों के साथ जो हो रहा है is that the only thing that matters? I hope not. Another thing that you showed in this movie and आपके इंटरव्यू का सबसे माइंड ब्लोइंग पार्ट इज जब रणविजय अबरार के घर पहुंचता है और वो उसकी तीनों बीवियों को पकड़ के इंक्लूडिंग द प्रेग्नेंट वन बंदूक दिखा के गोली चला के धमकाता है, फिर भी वो अबरार की लोकेशन नहीं बताती. एंड योर टेक अबाउट दिस मोमेंट वाज दिस. Bobby Deol's marriage and everything is actually domestic abuse. Yeah. Marital rape, call it anything, you know. But when you see, they are not willing to reveal the details about where he has gone. I found very fascinating when I was thinking about the scene that ill-treating is a small word to say, but they are giving him that respect and all that. What? Seriously. How can you call it domestic abuse and then in the same sentence label तीनों बीवियों की silence as respect? In the same statement. भैया domestic abuse के बाद respect नहीं आती, डर आता है. डर. Your logic genuinely scares me sometimes. And I believe lack of this understanding is exactly what the problem is. Your own logic, your own morality is flawed at certain points, which is why आप अपने movies को and characters को justify करते रहते हो. Like no matter what. And then that creates a ruckus out in the real world, जिससे फिर आपको खुद ही problem होती है. See, it's a loop. क्योंकि see, no matter what you say or any other knowledgeable movie critic says, fact यही है कि सिनेमा लोगों की लाइफ्स पे काफी बड़ा impact करती है. इस चीज पे multiple researches हो चुके हैं and होपफुली आगे भी होते रहेंगे. तो जो भी ये लोग हैं ना जो बोलते हैं कि भैया सिनेमा को बस सिनेमा की तरह देखो, आर्ट की तरह, या फिर बस उस फ्रेम में देख के खत्म कर देना चाहिए, उससे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सिनेमा शुड नॉट बी द सोर्स ऑफ योर लर्निंग और योर नॉलेज. ये लोग ना मुझे बहुत इग्नोरेंट लगते हैं. देयर इज जस्ट नो वे एट ऑल कि तुम ग्राउंड रियलिटी से इतना अनअवेयर हो. फॉर आर्ग्यूमेंट सेक चलो यू कैन से दैट, बट इन चीजों को पॉप कल्चर एके पॉपुलर कल्चर बोला जाता है फॉर दिस एग्जैक्ट रीजन. सिनेमा इज अ मिरर टू द सोसाइटी भी बोला जाता है फॉर दिस एग्जैक्ट
रीजन. हाउ कैन यू कीप टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स पूरे दिन बट एट द एंड ऑफ द डे से कि भाई मूवीज को मूवीज की तरह देखो, बस बात खत्म. एज यू सेड इन योर इंटरव्यू कि ये सिनेमा है, यहाँ कुछ भी दिखा सकते हैं, बट मैं अपनी रियल लाइफ में ऐसा थोड़ी करता हूँ. ऐसा है तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, आई लव दैट. बट बीइंग अ मूवी बफ एवर सिंस योर चाइल्डहुड यू कांट पॉसिबली डिनाई द फैक्ट्स, राइट? अगर ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा होता बड़ी क्वांटिटी में, लोग सिनेमा से इंस्पिरेशन लेके अपना जीवन नहीं जी रहे होते या फिर कुछ चीज़ें नहीं कर रहे होते, तो वी वुड नॉट बी हैविंग दिस कॉन्वर्जेशन एट ऑल ना. बात ही खत्म थी फिर, राइट? इवन इन कबीर सिंह सेम थिंग हैपेंड. उसमें भी आई डोंट रिमेंबर एनीवन फ्रॉम द क्रू सेइंग कबीर इज नॉट अ गाय यू शुड लाइक, एक्सेप्ट फॉर शाहिद कपूर. उसने इस इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे से अपना पॉइंट रखा एंड आई अंडरस्टैंड हिज पॉइंट ऑफ व्यू कम्प्लीटली एंड आई एग्री विद हिम. ठीक है, बट संदीप भाई का अलग ही चालू है. बिकॉज इन बोथ ऑफ दीज मूवीज द लीड कैरेक्टर्स लिव अ प्रॉब्लमैटिक लाइफ, राइट? अ क्वेश्चनेबल लाइफ, नॉट अ टिपिकल हीरो, विच इज गुड क्योंकि कोई दूध का धुला नहीं होता. बट सच आइडल्स शुड नॉट बी देयर इन जनरल बिकॉज किसी भी लेवल पे हो दिस इज टॉक्सिक. बट नाउ आप कहते हो ये If I'm glorifying a rapist character, then I'm doing something wrong to the society. तो चलो फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अ लुक एट दिस सीन फ्रॉम कबीर सिंह व्हेन कबीर जस्ट वांट्स टू हैव सेक्स फटाफट एंड द गर्ल रिफ्यूजेस. तो भाई बंदा चाकू उठा के कपड़े उतारने बोलता है, बट जस्ट बिकॉज बाहर उसका फियांसे खड़ा होता है, उसका बंदा खड़ा होता है, ही सडनली गेट्स दिस क्लिक इन हिज हेड दैट किक्स हिम आउट ऑफ दिस जोन, सो ही स्टॉप्स. बट लेटर इन द मूवी व्हेन हिज फ्रेंड आस्क्स हिम कि अगर उसका बंदा नहीं आता तो तू क्या करता, तो ही अग्रीज कि वो कर लेता सेक्स चाकू दिखा के. Here, exactly right here, we are talking about the thing that he stopped himself from doing. That is a possible rape. जो सुन के कबीर का दोस्त says this. थोड़ा चिल करना बे. ये बता तू ये सब करके प्रीति को भूल जाएगा क्या? माइंडसेट चेंज कर बे. कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ, गर्लफ्रेंड बना. And then you are saying this in your interview. But he's like we begin at the opening. He's threatening that woman and saying, you know. That's what I gave a clarity when Shiva asked him. तुझे क्या लगता है वो डार्लिंग ओपन द डोर वाला नहीं आता तो तू कुछ करता था उस दिन? बोलता हाँ, अरे ये सब करना बंद करो जो तू नहीं है. डोंट डू ऑल दिस. फाइंड अ बेटर गर्लफ्रेंड बनाओ, आगे बढ़ो लाइफ में. आई एम सॉरी, लाइक वेयर इज द क्लैरिटी हियर? कहाँ दी आपने क्लैरिटी? एक बार तो बोलो कि हाँ दिस वॉज अ पॉसिबल रेप, जो आप अपने लीड कैरेक्टर को अटेम्प्ट करते दिखा रहे हो, लीड कैरेक्टर को, एंड स्टिल यू नेवर मेंशन और एडमिट द प्रॉब्लम फॉर द ऑडियंस. इवन इन दिस इंटरव्यू बस 3 सेकंड लगेंगे ये कहने में कि भाई ये गलत था, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं होना चाहिए था. दिस इज वन बिगेस्ट फ्लॉ ऑफ दिस कैरेक्टर. सो यस, कबीर सिंह शुड नॉट बी लाइक्ड. 3 से 10 सेकंड लगेंगे ये बोलने में, बट यू डू नॉट, यू चूज नॉट टू. और एग्जाम्पल तो आपके लाजवाब कि भाई कबीर सिंह इतना डोमिनेटिंग है, क्लास में घुस के वो सबको धमकाता है, सबके सामने उसे लेके जाता है. देखो मुझे ये देख के कुछ प्रॉब्लम नहीं लगी, ऑब्वियसली जेन्युइनली मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है ये सारे सीन देख के, बट आपका लॉजिक सुन के मैं हैरान था भाई. Rajiv Masan said that he plucks her out of the classroom and marks the territory and says that तू मेरी बंदी है. Right. मुझे तो कुछ गलत नहीं लगता उसमें. You called 2000 people to your wedding and put a knot. What are you trying to tell? So you see this as Of course, a sort of form of that. of course, yeah. भाई शादी, सीरियसली शादी, भैया शादी तुम करते हो एक ऐसे इंसान से जिसे पता है कि उसने शादी करनी है, उसका कंसेंट इसमें होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस आजकल एटलीस्ट. मतलब आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम एज सच विद दीस सीन्स इन द मूवी, बट कम ऑन भाई, बोथ थिंग्स आर नॉट द सेम, बोथ थिंग्स आर वेरी डिफरेंट. और अब तो संदीप भाई ने एक हुक्म का इक्का रखा हुआ है अपनी जेब में, दैट इज आधे सवालों को स्यूडो फेमिनिज्म बोल के इग्नोर कर दो. एक ऐसा क्वेश्चन संदीप भाई को लगता है उस बारे में जब एनिमल में रणविजय चीट करके आता है और गीतांजलि को मना करता है उसके मरने के बाद दूसरी शादी करने के लिए. फॉर दिस संदीप भाई हैज टू से दिस. Especially the pseudo feminists looked at it saying, "Oh, he can go and sleep with another woman, but he doesn't want her to, marry again." Once again, जैसे आपकी मूवी गहरी है, इस सवाल को भी गहराई से समझो ना. If a viewer looks at it from another angle, that is कि अगर रणविजय के पास कुछ भी करने की लिबर्टी है तो गीतांजलि के पास क्यों नहीं? और सेम मूवी में जीजा को मारने के बाद रणविजय अपनी बहन से ये कह रहा है कि तू जाके दूसरी शादी कर ले, बट बीवी के पास वो ऑप्शन नहीं है. Why? तो you could have ended it by saying this. Once you are with one person, the share of love with that particular person, you are done for the life. That could be the exchange between Geetanjali and Ranvijay. And knowing the psyche of Geetanjali, so he must have felt that you can't make it with anybody else. So you better remain single. Maybe that's his thought. Yeah. It has nothing to do with a generalized feeling. It's purely personal. Yeah. And people would have completely agreed with it, but
आप अपना लॉजिक एक्सप्लेन करो ना, बात खत्म हो जाएगी। बट आप बोलते हो ये सूडो फेमिनिज्म है। हाउ, ये कहाँ से आ गया? आई बिलीव दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। और ये सब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होने की या टॉक्सिक होने की या फिर यू नो सूडो फेमिनिस्ट होने की प्रॉब्लम नहीं है। येस डेफिनेटली आई एग्री, कुछ लोग हैं जो ज़बरदस्ती करते हैं ऐसी बकचोदी, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी ये टॉपिक उठा के ले आते हैं और बेकार की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आई अंडरस्टैंड, आई एग्री, बट उसका मतलब ये नहीं ना कि आप उनका कवर लेके असली सवाल भी स्किप कर दोगे। That's not how it can work, right? अच्छा देखो, do not get me wrong, please. I am not trying to hate on you, बिल्कुल भी नहीं. My only point is कि you are definitely a really good director. I genuinely love the quality of your work and interviews देखने के बाद I am genuinely impressed and intrigued by your process also, be it writing or direction and even editing. If I get a chance, I would even love to learn stuff about filmmaking from you. But all that being said, fact still remains कि morality और accountability आज की तारीख में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. On top of that, criticism झेलना और समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली बीइंग अ फिल्म मेकर। सो आप मूवी चाहे जैसी भी बनाओ, हमको मज़े दिलाओ, बट रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफ्लेक्ट मत करो। एक्सेप्ट व्हाट्स रॉन्ग एंड व्हाट्स प्रॉब्लमैटिक एंड योर इश्यूज विद मोस्ट ऑफ द क्रिटिक्स विल बी सॉल्व्ड इन नो टाइम। बट अगर एक्सेप्ट नहीं होता तो दैट वुड सिंपली मीन कि योर लॉजिक इज एंड विल रिमेन फ्लॉड। भगवान जाने कब तक। एंड नो वन इज आस्किंग यू टू चेंज योर वे ऑफ वर्किंग, या फिर अपनी कहानियां भी तुम अब फिल्टर करके बनाने लग जाओ। नो वन इज सेइंग दैट। यू डू वट एवर यू फील लाइक डूइंग। वी वुड लव टू सी द अनफिल्टर्ड संदीप रेड्डी वांगा डेफिनेटली, बट अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ध्यान में रखो, बिकॉज यू ऑल्सो होल्ड द पावर टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड जस्ट लाइक अंकल बेन सेड, with great power comes great responsibility. सो ऑल द बेस्ट, राइट? अब अपना करो, फिर हम अपना करते हैं। सो या ये थी वो कुछ चीज़ें जो मैंने सुनी पर मुझसे पची नहीं, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत लोग वाहवाही कर रहे थे। तो सोचा कि एक वीडियो बना ही दूँ, क्योंकि मेरा कहना, देखो मेरी बातों से अगर एक इंसान का भी दिमाग ठीक हो रहा है तो भाई इट्स अ विन फॉर मी, राइट? एंड नाउ सबसे ज़रूरी बात, बहुत ही ज़रूरी बात, ध्यान से सुनना। तुम लोग मेरी पुरानी वीडियो अबाउट कबीर सिंह देखोगे तो वहाँ मेरी करी बातें इस वीडियो में हुई बातों से काफ़ी डिफरेंट हो सकती हैं, अलाइन नहीं करेंगी आई बिलीव। तो उसके चक्कर में मुझे हिपोक्रेट बोलने मत लग जाना, बिकॉज बात ऐसी है कि वो वीडियो जब अपलोड हुई थी वो 6 साल पहले की बात है यार। वो ऐसा वक्त था जब मैं मेरी पुरानी टीम के साथ काम करता था। तो पहली बात तो उस वीडियो में मैंने जो भी बोला, दोज वर नॉट मेरा अकेले का ओपिनियन, वो हमारी टीम का एक कलेक्टिव ओपिनियन था, क्योंकि हम सारे मिलके एक स्क्रिप्ट पे काम करते थे। प्लस 6 साल पहले मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मूवीज़ एंड सोसाइटी बहुत ही डिफरेंट थी फ्रॉम टुडे, बिकॉज सी नेचुरली यार यू कीप ग्रोइंग इन लाइफ एंड जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो तुम्हें और समझ आती है, तुम और चीज़ें क्लैरिटी के साथ समझ पाते हो। सो सेम चीज़ हुई विद टाइम, मेरी सोच बेटर हुई। तो तब मैंने शायद मूवी ढंग से नहीं देखी थी, बट नाउ दैट आई हैव रीवॉच्ड बोथ द मूवीज मल्टीपल टाइम्स, प्लस मैंने किसी भी क्रू का कोई इंटरव्यू नहीं देखा था पहले। सो या नाउ इज़ व्हेन आई सॉ थिंग्स डिफरेंटली। अलॉन्ग विद दैट मैंने उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पढ़ा, लोगों ने जो मुझे समझाने की कोशिश करी, लोग अपने ओपिनियंस दे रहे थे, अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे थे। सो आई अंडरस्टूड ऑल ऑफ दैट। वो सारा देख के, वो सारा समझ के मैंने आज ये वीडियो बनाई है। सो वट एवर आई एम सेइंग इन दिस वीडियो, दैट इज समथिंग आई डेफिनेटली प्रीच टुडे। तो हाँ, तो दैट्स इट फॉर मोफियस, बट गाली देनी है तो अकॉर्डिंगली दो। एंड आ जाओ, लेट्स टॉक इन द कमेंट सेक्शन, देखते हैं क्या बात है क्या बात नहीं है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।